and today is 5th September 2025. Today is the special day for all of us because today we celebrate Teachers' Day, right? So, to all our students, to all our parents, happy Teachers' Day. And let me take this opportunity to remember and thank my own teachers, my own gurus, and let me express my utmost respect and heartfelt thank you to everyone, those who have taught me, from whom I have learned. It includes my teachers, my fellow colleagues, my bosses, and my students with whom I'm interacting on daily basis now. So, before we proceed for discussion, let's just spare a minute to discuss why do we celebrate Teachers' Day. We celebrate Teachers' Day in memory of Dr. Sarvapalli Radhakrishnan, who was first Vice President of India and he was second President of India. Second president and first vice president. I think he became vice president in 1952, uh, and I think 1964, 62 he became the president. In between this, in 1954, I think he received Bharat Ratna. To in memory of his life and the amount of contribution he had in the domain of education, literature, we celebrate Teachers' Day. One of the lesser known fact about Dr. Sarvapalli Radhakrishnan is he was nominated 26 times for Nobel Prize. I think for 15 times he was nominated for literature and for 11 times he was nominated for Nobel Peace Prize. He was a firm believer that education is probably the best way to empower the minds as well as bring the peace in world. So by paying respect to the greatest teacher and our beloved Dr. Sarvapalli Radhakrishnan, let's start today's newspaper analysis. Today is 5th September, and this is the QR code. You can access our PDFs and all other informative documents from this Telegram channel. Little bit about myself. My name is Mayur, and I'm working as a senior faculty at CSAP. And in my academic background, I've worked for 8 years on different government projects. I was also like I have appeared in multiple UPSC mains and IFS mains and interviews. Moreover, I've cleared couple of competitive examination, which includes banking from SBI to RBI to state pieces to CAPF. I've been in the final list. I've cleared multiple stages. So I have some level of understanding of newspaper. I have I am in that position where I can assure you that I can help you. I can assist you in deciding which are the important topics, which are the important articles, which one should focus upon, and which should not be ignored. All right. So let's begin. Today we would be covering 5 important topics. First one is neonatal care in Assam. It concerns with GS2, especially health. It also impacts society. Okay. Then we would be covering first Northeast India Heritage Festival. This is very, very important. Then we'll cover the article regarding saving vultures. It will come from the Environment and Biodiversity GS3. Then we would continue discussion on GST 2.0. हम पिछले 2-3 दिनों से कर ही रहे हैं इसके बारे में डिस्कशन. तो ये कंसर्न होता है GS2 में, GS3 में, गवर्नेंस के साथ, पॉलिसी रिफॉर्म्स के साथ एंड इंडियन इकोनॉमी के साथ में. And since today is Teachers' Day, we would discuss one important article, Teachers in Changing World. It is from GS2 to and GS4. Ethics में भी काम आएगा. ये जो पहले 3 articles है, these are from Assam Tribunal. This one is from The Hindu, and this one is from Indian Express. So we have got all of these covered. The first
आर्टिकल इज अबाउट नियोनाटल केयर। नियोनाटल का मतलब क्या होता है? न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न जो रिसेंटली पैदा हुए बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, अभ्रक जिन्हें कहा जाता है, उनके बारे में ये आर्टिकल है। तो स्पेशली इट कंसर्न्स दी it concerns the Assam. All right. So what is it? It is what this article emphasizes upon is systematic reform, and it empowered the nursing, like empowered nursing. These are the vital to strengthen the neonatal care and prevent the avoidable tragedies in Assam. तो ये नियोनाटल का थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। नियोनाटल का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है ना? नियोनाटल का मतलब होता है कि जो बच्चे जीरो, लाइक फर्स्ट डे जो है, 0th डे से लेकर 28th डे तक, मतलब जो 28 दिन तक की जो एज है, वहां तक के जो बच्चे हैं, 1 महीने से कम वाले जो बच्चे होते हैं, उन्हें कहा जाता है नियोनाटल। इन्हें कहते हैं नियोनाट। तो व्हाट इज हैपनिंग इन दिस पर्टिकुलर आर्टिकल इज it highlights this particular article has highlighted the systematic gaps in neonatal care in Assam. This the systematic gaps of the neonatal care, it is triggered by the recent tragic incident at Guwahati Medical College and Hospital. So what has happened is like we have हम लोगों ने बहुत सारा प्रोग्रेस कर लिया है नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर, या जो इंडिया न्यूबॉर्न एक्शन प्लान है उसके अंडर, या जो स्पेशल न्यूबॉर्न न्यूबॉर्न केयर यूनिट्स होते हैं, जैसे आईसीयू होते हैं, आईसीसीयू होते हैं, वैसे ही एसएनसीयू होते हैं, मतलब स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट्स, छोटे बच्चों का आईसीयू। इतना करने के बाद भी नियोनेटल मॉर्टेलिटी रिमेन द कंसर्न। जो इस एज में जो न्यूबॉर्न बच्चे होते हैं, उनका डेथ जो होता है, दैट इज कॉल्ड नियोनेटल मॉर्टेलिटी, ये काफी हाई है। इवन आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग दीज स्कीम्स, आसाम में वो रेट अभी भी एक्सेप्टेबल लेवल से ऊपर है। हालांकि एक्सेप्टेबल ऐसा कुछ हो नहीं सकता है, बट एटलीस्ट बेर मिनिमम जितना हो सकता था उससे काफी ऊपर है। ओके, बट ये क्यों है? आई मीन इट इज नियोनेटल मॉर्टेलिटी स्टिल रिमेन्स अ कंसर्न। व्हाई? बिकॉज ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप्स, because of the shortage of trained staff. There is a weaker accountability, and we have inadequate nursing empowerment. तो की इश्यूज इसमें क्या होंगे? इसमें हमारा मेंस का ही क्वेश्चन बहुत अच्छे से हो सकता है। मतलब इफ देयर इज अ क्वेश्चन, वी कैन आंसर दैट क्वेश्चन very well based on the content of this particular slide. Key issues क्या है? We have inadequate infrastructure and we have uneven distribution of SNCUs. Okay, equally distributed नहीं है हर जगह पे। The second problem is हमारा infection control mechanism काफी poor है। We have poor infection control and also safety culture भी काफी weak है। हमारे केस में ये प्रोफेशनल अकाउंटेबिलिटी जो है ना, ये भी बहुत कम पड़ जाती है। हमारा ट्रेनिंग कम है। सो प्राइमरी, रेफरल एंड टर्सरी केयर जो है, इनके बीच में भी लिंकेज जो है वो भी काफी वीक है। तो व्हाट in nutshell what we have is too many problems in infrastructure and training and professional accountability. तो ये जो आर्टिकल जो है, ये कहता है कि there is a need, it emphasizes on the need for strengthened professional ethics and accountability. अगर आप मेडिकल प्रोफेशन में हो, आप केयर प्रोफेशन में हो, तो आपका प्रोफेशनल एथिक्स काफी स्ट्रांग होना चाहिए, प्रोफेशनल अकाउंटेबिलिटी काफी हाई होना चाहिए, राइट? It focuses on empowered nursing system, which highlights on the clear roles in infection control, record keeping, and early intervention. डिसीज कुछ डिटेक्ट हुआ, कुछ प्रॉब्लम डिटेक्ट हुआ, तो बहुत जल्दी इसका डिटेक्शन एंड इंटरवेंशन होना जरूरी है। It emphasizes on the establishment of a safety culture under SNCU, मतलब जैसे मॉनिटरिंग कंटिन्यूअसली हो, पीयर लर्निंग हो, एंड पेशेंट सेफ्टी के बारे में डिस्कशन हो, उसका कोई स्पेसिफिक फ्रेमवर्क हो, ये सारी चीजों के बारे में the article emphasizes on.
It also talks about systematic reforms for better coordination between the tertiary hospital, between the primary health centers and the referral pathways. इनके बीच में coordination होना बहुत ज्यादा जरूरी है. This is what the article highlights. ये systematic reforms उसके लिए जरूरी है. So let's try and solve this MCQ. I'll give you 30 seconds to think about it. Consider the following statement regarding special newborn care units in India. आप देख लीजिए इसको. Now try and answer this question. Type your answers in comment section. They are established at district and sub-district hospital to provide specialized care to sick and low birth weight newborns. SNCUs are part of India Newborn Action Plans. They exclusively cater to the neonates up to 12 months of age. अभी हम लोग ने अभी जस्ट देखा नियोनेटल का मतलब क्या होता है. अप टू 28 days, राइट? तो अब तो इसका आंसर मिलना इजी है ना, है कि नहीं? एनीवेज चलो, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. द नेक्स्ट टॉपिक इज फर्स्ट नॉर्थ ईस्ट इंडिया हेरिटेज फेस्टिवल. ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया हेरिटेज फेस्टिवल, ये पहला वाला हो रहा है और ये कहाँ हो रहा है? यूएसए में. ओहायो एक सिटी, एक स्टेट है, उसमें कोलंबस नाम का एक सिटी है. ये कोलंबस सिटी में, ओहायो स्टेट में, यूएसए के, ये फर्स्ट एवर नॉर्थ ईस्ट इंडिया का फंक्शन हो रहा है जिसमें 8 स्टेट्स, 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स पार्टिसिपेट कर रहा है. दिस फंक्शन और दिस फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब इंडियन गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स प्लस यूएस ऑफिशियल. ओके, तो it is the first Northeast India Heritage Festival is scheduled for 19 and 20th September, 2 दिन के लिए, in Columbus, Ohio, USA. पार्टिसिपेंट कौन है? कल्चरल शोकेसेस फ्रॉम ऑल 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा एंड सिक्किम भी इंक्लूडेड है. इट इज विथ गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम बोथ इंडिया एंड द यूएसए. इसका थीम इज केयर. केयर स्टैंड्स फॉर कनेक्ट, assimilate, research, and empower. This whole idea is aiming to promote the Northeast tourism, artisanal livelihood, environmental awareness, and the international cultural exchange. नॉर्थ ईस्ट में इतना बढ़िया आर्ट क्राफ्ट्समैनशिप है, आर्टिस्ट है, वो बैम्बू का वर्क हो या कॉटन का वर्क हो, टेक्सटाइल का वर्क हो, उसको प्रमोट करना बहुत जरूरी है. In order to expose world to the rich culture of North East, ऐसे जो programs है ये बहुत crucial होते हैं, है ना? And we are glad that such program is happening. तो इसका significance क्या है? Significance ये है कि ये ऐसे प्रोग्राम जो होते हैं वो कल्चरल डिप्लोमेसी एंड सॉफ्ट पावर को प्रमोट करता है. ऐसे प्रोग्राम की वजह से इंडिया और यूएस का टाइज जो है, जो सेकेंडरी लेवल पे काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है. अब फॉर एग्जांपल, अभी ऐसे टाइज का फायदा क्या होता है कि लेट्स से कि अभी डोनाल्ड ट्रंप जो टैरिफ वॉर कर रहे हैं, जिस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, मे बी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट में थोड़ा दिक्कत आएगा, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट में थोड़ा डिस्टेंस बढ़ जाएगा, लेकिन जो पीपल टू पीपल कनेक्ट है दैट विल रिमेन स्ट्रांग, राइट? दैट विल रिमेन स्ट्रांग. इसका और क्या सिग्निफिकेंस है? इंक्लूसिव डेवलपमेंट, आर्टिस्ट वेलफेयर, ये सब इसमें इंटरकनेक्टेड है. इट विल एनहांस द लाइवलीहुड्स एंड ग्लोबल विजिबिलिटी ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न आर्टिसंस. This will also help in preservation of cultural heritage.
This is valuable for safeguarding and global dissemination of art forms. So let's just quickly solve this question. First, Northeast India Heritage Festival. It is organized by the Ministry of Culture, Government of India. It aims to connect artisans from Northeast India with modern logistics and international trade networks. Festival exhibits include traditional Meli, martial performances from the Northeast. ये आप इसको attempt करिए. Try solving this question. If you can solve this question, nothing like it. This question is very simple, very straightforward. It's very easy to attempt this question. All right. Next topic is saving vultures. I would request you to write your answers in the comment section. We will check tomorrow if these options are correct. All right. ठीक है. Saving vultures. Why it is important? What is the context of it? News क्या है? बात यह है कि ये जो वल्चर्स है इनका नंबर अचानक से अब कम होने लग गया है. इनको वल्चर्स आर क्लीनर्स, उनको क्लीनर कहा जाता है. जो हम लोगों ने वल्चर का इंपॉर्टेंस यहाँ पे भी देखा है कि जटायु, जो रामायण में जिनका रेफरेंस आता है, हु फॉट विथ रावण, जब सीता माँ को वो किडनैप करके लेके जा रहे थे, उठा कर लेके जा रहे थे, तब जो डिस्कशन हुआ, वो जिन्होंने फाइट किया, तो वो जटायु जो है वो एक वल्चर था, है ना. तो रामायण के टाइम से वल्चर का इंपॉर्टेंस हमारे कल्चर में रहा है. ऑल राइट. आर्टिकल क्या डिस्कस करता है? आर्टिकल सेज दैट इंडिया वंस हैड abundant vulture population, but since 1990s there has been a catastrophic decline, over 99% in some species. मतलब 99% कुछ स्पीशीज में खत्म हो चुका है, making it one of the fastest population collapses recorded in the wild birds. मेजर कॉज क्या है? डाइक्लोफेनाक. ये डाइक्लोफेनाक जो है ना, डाइक्लोफेनाक, इसके बारे में आप इतना पढ़ोगे, इतने बार आपको ये आएगा जब आप एनवायरमेंट इकोलॉजी के बारे में पढ़ोगे. ये क्या है? एक पेन किलर है. दिस इज अ पेन किलर. एनिमल्स को दी जाती है, स्पेशली काउज, जो कैटल है, उसके लिए ये पेन किलर दिया जाता है. तो ये पेन किलर धीरे धीरे एक्यूमुलेट हो जाता है उन कैटल के बॉडी में, एंड जब व्हेन दे डाई, द वल्चर व्हिच फीड ऑन देम कैनॉट डाइजेस्ट डाइक्लोफेनाक, है ना. इट इज पेन किलर यूज्ड फॉर कैटल व्हिच व्हेन कंज्यूम्ड थ्रू कार्कसेस प्रूव्ड लीथल टू द वल्चर्स. ये वल्चर्स को मार देता है. ये वल्चर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दीज आर क्रूशियल स्कैवेंजर्स. एनवायरमेंट के क्लीनर है ये. दे क्लीन अप कार्कासेस, मतलब जो डेड बॉडीज होती है एनिमल्स की, जो सड़ती है, उनको ये खाता है और खत्म करता है. एंड दिस, बाय क्लीनिंग अप कार्कासेस, दे प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ जूनोटिक डिसीजेस, जो जानवरों के मरने के बाद उनके थ्रू स्प्रेड हो सकते हैं, जैसे कि एंथ्रैक्स है, रेबीज है, प्लेग है. इनको स्प्रेड होने से ये रोक देता है. अगर वल्चर्स डिक्लाइन हो जाए तो दे पोजेस अ सीरियस पब्लिक हेल्थ रिस्क, क्योंकि ये जूनोटिक डिसीजेस तो स्प्रेड हो जाएंगे ना, है ना. तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? इन रिस्पॉन्स इंडिया हैज बैन लगा दिया है डाइक्लोफेनाक को, डाइक्लोफेनाक के ऊपर इन 2006. आज से लगभग 20 साल पहले ही इसके ऊपर बैन लग गया है. एंड देन इंडिया ऑल्सो प्रमोटेड सेफर ऑल्टरनेटिव्स. स्टिल challenges अभी भी है because of the illegal use of diclofenac and the lack of awareness among the users of diclofenac. India has also taken some conservation efforts, which include the vulture safe zone. नेचर में कुछ ऐसे सेफ जोन बनाए हैं vultures के लिए. फिर कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम चलाया जाता है, जिसमें vultures को अंडर ह्यूमन इंटरवेंशन, अंडर ह्यूमन सुपरविजन ब्रीडिंग कराया जाता है. कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम जिन्हें कहते हैं. ये कहाँ कहाँ है? ये है इंदौर में, भोपाल में, रानी में, जूनागढ़ में. देर आर मिनिमम 4 प्लेसेस जहाँ पे ये
कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम रन हो रहा है. Along with this, awareness campaigns are also running. तो बात क्या है ना कि ये जो वल्चर्स है, टू सेव वल्चर इज नॉट जस्ट अबाउट स्पीशीज कंजर्वेशन. बस एक स्पीशी को बचाने का पर्पस नहीं है. इट इज मच मोर देन दैट. इट इज अबाउट सेविंग द इकोसिस्टम and maintaining balance in that ecosystem, and also protection of the public health. Here is another question. I would strongly recommend you to solve this question. I'll give you 30 seconds to read and think about it and write your answers in comment section, and we shall discuss this tomorrow. Next article is GST 2.0. हम लोग पिछले 2-3 दिनों से इसको कंटिन्यूअसली डिस्कस कर रहे हैं. रिसेंटली जीएसटी में रिफॉर्म हुआ है, and what has led to the simplification of multiple GST slabs is an example of people's reform. 56th मीटिंग हुआ जीएसटी काउंसिल का, उसमें ये डिसीजन लिया गया. ये डिसीजन हिस्टोरिक रिफॉर्म की तरह देखा जा रहा है ना. दिस मार्क्स ए मेजर माइलस्टोन इन इंडियाज टैक्स हिस्ट्री. एडवांसिंग जीएसटी 2.0 रिफॉर्म, इट इज अलाइंड विथ विकसित भारत विजन ऑफ 2047. 2047 का जो विकसित भारत का विजन है, उसके अलाइनमेंट में ये टैक्स रिफॉर्म है. इससे हुआ क्या है? दिस बोल्ड स्टेप हैज रिड्यूस्ड द कंप्लायंस बर्डन. इट हैज एनहांस्ड द प्रेडिक्टेबिलिटी फॉर बिजनेस. क्योंकि अगर आप बिजनेसमैन को अभी पता है कि 4-5 स्लैब की जगह पे सिर्फ 2 ही स्लैब होने वाले हैं, तो बिजनेसमैन को दे कैन प्रेडिक्ट वेयर डू दे वांट टू इन्वेस्ट, हाउ मच डू दे वांट टू इन्वेस्ट. इन सब के ऊपर वो प्रेडिक्शन कर सकते हैं और उसके बाद अपना एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकता है, राइट? इसकी वजह से होता क्या है, ये जो टैक्स रिजिम है, टैक्स स्ट्रक्चर है, इट बिकम्स मोर सिटीजन फ्रेंडली. And this kind of reforms clearly signal the government's commitment to align Indian taxation with the best global practices. ये जो टैक्स स्लैब में जो चेंजेस हुआ है वो हमने कल भी डिस्कस किया था डिटेल में. हम थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लेते हैं. पहले 0, 5, 12, 18, 28 ऐसे मल्टीपल स्लैब थे. अब सिर्फ 2 स्लैब्स है. एक है 18% जो कि स्टैंडर्ड रेट है, एंड 5% जो मेरिट रेट है. इसके अलावा वी ऑल्सो सॉ कि 40% डीमेरिट रेट भी है जो सिन गुड्स के ऊपर अप्लाई होता है. बट ये लार्जली इसका पर्पस है जो कंज्यूमर है उनको कंजम्पशन करने से रोकना. मतलब टोबैको हो गया, सिगरेट्स हो गया, ऐसे जो सिन गुड्स है उसके ऊपर ये लगाया जाता है. ओके. अब इससे हुआ क्या है कि ट्रांसपेरेंसी बढ़ गया है, प्रेडिक्टेबिलिटी बढ़ गया है, कंप्लायंसेस का ईज बढ़ गया है. रिलीफ तो हाउस होल्ड क्यों है? बिकॉज जो इसेंशियल्स है, मिल्क, पनीर, चपाती, इनको टैक्सेशन से छुटकारा मिल गया है. छुट्टी दे दी है इसमें से, मतलब दे हैव बीन एग्जेम्प्टेड. ये हम लोग ने कल भी डिस्कस किया था कि डेली यूज गुड्स लाइक सोप, शैम्पू, टूथपेस्ट, बाइसिकल्स, किचनवेयर, ये अब 5% ब्रैकेट में आ गया. पैकेज्ड फूड्स, नूडल्स, चॉकलेट्स, बेवरेजेस, उनका भी रेट कट हुआ है ना. इससे कंजम्पशन को बूस्ट मिलेगा. हम लोगों ने ये कल डिस्कस किया था कि लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस जो है उनको फुल्ली एग्जेम्प्ट कर दिया है, मतलब उनसे पूरा टैक्स हटा दिया है. इससे होगा क्या? इट विल एनहांस द अफोर्डेबिलिटी, इट विल इम्प्रूव द सोशल सिक्योरिटी, एंड दिस एग्जेम्पशन एंड रिडक्शन और द इसेंशियल ड्रग्स एंड डिवाइसेस, जैसे कि जो कैंसर के लिए यूज होता है, रेयर डिसीजेस में यूज होता है, क्रोनिक कंडीशंस में यूज होता है, उनके ऊपर आइदर एग्जेम्पशन दे दिया, मतलब पूरा ही हटा दिया, या बहुत ज्यादा कम कर दिया है रेट. अब एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स के लिए इसमें क्या बेनिफिट है? ये ट्रैक्टर्स, फार्म मशीनरी, ये सब 5% जीएसटी स्लैब में आ गया है. ये फर्टिलाइजर्स है, सल्फ्यूरिक एसिड है, अमोनिया है, ये 18% के ब्रैकेट में होता था, उसको सीधे अब 5% पे लेके आए. 13% का टैक्स रिडक्शन हो गया है.
अब एंड इसने कन्वर्ट इट इट हैज करेक्टेड द इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। इसके बारे में हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था, अभी भी मैं बता देता हूँ। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर किसको कहते हैं? कि जो आपका फाइनल प्रोडक्ट है, लेट्स से कि ये एक फाइनल प्रोडक्ट है, इसके ऊपर टैक्स रेट कम था, एंड जो इसके अंदर जाने वाले इनपुट प्रोडक्ट्स है, जो बेसिक इनपुट्स उसके लिए जाते थे, उसके ऊपर हायर टैक्स था। तो ये आइडियली जो आपका फाइनल प्रोडक्ट है, फाइनल गुड है, उसके ऊपर टैक्सेशन ज्यादा होना चाहिए ना। बट इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में ये था कि जो आपके इनपुट्स किसी भी प्रोडक्शन में जा रहे हैं, उसके ऊपर टैक्स ज्यादा था और फाइनल गुड्स के ऊपर टैक्स कम था। तो ये इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को इन्होंने करेक्ट कर दिया है। इसमें जो लेबर इंटेंसिव एंड ट्रेडिशनल सेक्टर्स थे, उनको उन सेक्शन में जीएसटी को कट कर दिया गया। मतलब हैंडीक्राफ्ट्स है, मार्बल, ग्रेनाइट, लेदर गुड्स, ये सारे लेबर इंटेंसिव एंड ट्रेडिशनल सेक्टर, इसके ऊपर से टैक्सेशन कम कर दिया। अगर आपको पता हो तो ये जो ट्रम्प साहब ने जो टैरिफ लगाया है 50% का, इसमें सबसे ज्यादा नुकसान तो ये जो लेबर इंटेंसिव ट्रेडिशनल सेक्टर थे, इनका ही हो रहा था। ओके, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स क्या हुआ? एक, जीएसटी एपेलेट ट्रिब्यूनल जो है, इट इज गोइंग टू बी ऑपरेशनल बाय द ईयर एंड। इस साल के एंड तक ये इसका काम शुरू हो जाएगा। इससे होगा क्या? फास्टर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन हो जाएगा, इम्प्रूव्ड टैक्स पेयर का जो भरोसा है वो ज्यादा हो जाएगा। बाकी की रिफॉर्म्स क्या है? एक तो प्रोविजनल रिफंड्स, रिस्क बेस्ड कंप्लायंस, हार्मोनाइजेशन ऑफ वैल्यूएशन रूल्स, ये सारी चीजें हुई है। ये जो हुआ उससे ज्यादा हमारे लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा मेंस के पर्सपेक्टिव से। व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, हाउ दिस जीएसटी 2.0 रिफॉर्म आर गोइंग टू हेल्प अस। दे आर गोइंग टू बूस्ट द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। इमीडिएट रिलीफ मिलेगा फॉर कंज्यूमर्स एंड फार्मर्स एंड एमएसएमई, क्योंकि प्राइस कम हो जाएगा ना। इट विल अलाइन इंडिया विथ ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस इन टैक्सेशन। It will balance the fiscal stability with growth stimulus. Here is question. I would suggest you to take 10 seconds, 15 seconds to go through this question and write your answers. बहुत simple question है. I hope you have gone through it. Try solving it. All right. This is our final article of the discussion. Teachers in changing world. The world is undergoing humongous change. Now, आपको गूगल पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, चैट जीपीटी पे, हर चीज का आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, नॉलेज मिल जाता है। तो टीचर्स का रोल ये चेंजिंग वर्ल्ड में क्या है? एजुकेशन सिस्टम भी बदल रही है, स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट बदल रही, इकोनॉमी बदल रही, जो स्किल सेट, जो नॉलेज, जो विजडम एक्सपेक्टेड है एजुकेशन सिस्टम से, उसका रेफरेंस पॉइंट, कंटेक्स्ट भी बदल रहा है। सो हाउ टीचर्स शुड बी इन दिस चेंजिंग वर्ल्ड, राइट? तो इसके बारे में ये आर्टिकल डिस्कस करता है। पर्सनली मैं इनके सारे पॉइंट से अग्री नहीं करता हूँ, बट इट इज नॉट अबाउट माई पर्सनल agreement or disagreement. This is about what the article says. Okay. It says teachers are like nation builders, right? They teachers remain pivotal. सब बहुत crucial role play करते हैं in shaping thinkers, leaders, and innovators, irrespective of the technological disruptions. टीचर का रोल जो है that is evolving in nature. For example, from being mere knowledge provider, पहले सिर्फ knowledge provider का रोल होता था, to becoming mentors, facilitators, and lifelong learners, right? Now, teachers guide student in navigating artificial intelligence in digital classrooms and in global challenges.
तो रोल भी चेंज हो रहा है। ये जो फॉर्चुनेटली जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 था, इसका जो फ्रेमवर्क है, इट हैज आल्सो टॉक्ड अबाउट दीज टॉपिक्स, दिस कंसर्न्स। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है, इट फोकसेस ऑन होलिस्टिक, मल्टीडिसिप्लिनरी एंड वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। It emphasizes teachers training, capacity building, and continuous professional development. So basically, ऐसा नहीं हो सकता कि टीचर एक बार पढ़ लिए तो उसके बाद में उनमें कोई अभी इम्प्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं बची। इट्स द अदर वे अराउंड। In fact, teacher will always have to learn new things. They'll have to always equip themselves with the current happening, newer body of knowledges, right? उनको खुद को कैपेसिटी, सेल्फ कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, करना चाहिए। New Education Policy 2020 also talks about technology integration. It talks about digital classroom, artificial intelligence based learning. It also talks about aid tech, मतलब एड टेक टूल्स के बारे में बात करता है। ये मतलब इट सेड कि ये एड करेगा, मतलब मदद करेगा, लेकिन टीचर्स को रिप्लेस नहीं करेगा। नॉट रिप्लेसमेंट फॉर द टीचर्स, मतलब टीचर्स रहेंगे, टीचर्स को मदद करने के लिए इनको यूज करना चाहिए, टीचर्स को रिप्लेस करने के लिए नहीं, ऐसा एनईपी कहता है। इसमें ह्यूमन टच एंड मेंटरशिप रिमेन्स इररिप्लेसेबल, क्योंकि हमारा जो एजुकेशन है उसमें हमको वैल्यू बेस्ड एंड क्रिटिकल थिंकिंग का भी डेवलपमेंट करना है, राइट? देन इट टॉक्स अबाउट कल्चरल एंकरिंग, बिकॉज टीचर्स का बहुत क्रुशियल रोल होता है इन नर्चरिंग इंडियननेस। एक भारतीय होना क्या है, एक हिंदुस्तानी होना क्या है, इसको नर्चर करने में टीचर्स का बहुत बड़ा रोल है। नर्चरिंग एथिक्स एंड देन नर्चरिंग वैल्यूज अलोंगसाइड मॉडर्न स्किल्स। तो पॉलिसी रिफॉर्म्स क्या जरूरत है? स्कीम्स लाइक पीएम श्री स्कूल्स, दीक्षा प्लेटफॉर्म, दे प्ले क्रूशियल रोल। एंड टीचर कैपेसिटी बिल्डिंग मतलब कंटिन्यूअस प्रोसेस है ये जो एनईपी का जो विजन है ना, टू मेक इंडिया एज अ ग्लोबल नॉलेज हब, उसके लिए टीचर ट्रेनिंग इज वेरी मच सेंट्रल। व्हाट आर द ग्लोबल डायमेंशंस? ग्लोबल डायमेंशंस में ये है कि the teachers all over the world are preparing students for rapidly changing and interconnected world, balancing the local values with the global competencies. Here we come to the last question of the day. With reference to the role of teachers in National Education Policy 2020, consider the following statement. NEP 2020 emphasizes continuous and professional development of teachers. Correct. The policy even visions teachers as a facilitators of holistic multidisciplinary learning. Correct. Digital technology is seen as a replacement of teachers in classroom. No, they are not replacement. The answer has to be one and two. So once again, thank you very much, and to all of you, happy Teachers Day. Hope your dreams, your aspirations come into reality. They become your dreams, become your reality. And on this auspicious day, let me extend my heartfelt congratulations and greetings to all of you. Thank you for joining us. Happy Teachers Day once again.